یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 29 دسمبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کرسچن سائنس۔ سنہری متن: زبور۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ جوابی مطالعہ: متی، لوکا۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ درسیواز بائبل میں سے یسایہ۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے صداقت سے تجھے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ لوکا۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے۔ اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔
लूका। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उन्हें पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे बोसा न दिया, मगर इसने जब से आया हूँ मेरे पाँव चूमना न छोड़े। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। लूका। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। याकूब। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। तीतस। खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। यूहन्ना। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस और इलाही मोहब्बत की ताकत कादिर मुतलिक है दर हकीकत गिरफ्त को ढीला करना और बीमारी, मौत और गुनाह को नेस्त करना जायज़ है। ये बड़ी हकीकत कि खुदा मोहब्बत के साथ सब पर हुकूमत करता है, गुनाह के सिवा किसी भी चीज़ के लिए सज़ा नहीं देता। यही आपका वो नुक्ता नज़र है जहाँ से आपने आगे बढ़ना और बीमारी के इंसानी खौफ को तबाह करना है। बीमारी के तदारक या इसके इलाज के लिए सच्चाई, इलाही रूह की कुदरत को मादी हवास के ख्वाब को तोड़ना चाहिए। सारी बीमारी की मुयस्सर वजह और बुनियाद खौफ, लाइल्मी या गुनाह है। बीमारी हमेशा गलत फहम की बदौलत तरगीब पाती है, जो शाउरी तौर पर मंजूर की जाती है, ना कि तबाह की जाती है।
बीमारी खारजी ख्याल की एक शबीह है। ज़हनी हालत को मादी हालत कहा जाता है। मादी अक्ल में जो कुछ भी जिस्मानी हालत के तौर पर अजीज समझा जाता है, उसकी शबीह जिस्म के सामने लाई जाती है। इसका इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले दुरुस्त सिमत में देखना चाहिए और फिर इस जानब चलना चाहिए। हमें ख्यालात में कामिल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम उन्हें कभी अजीम और शरीफाना जिंदगी में नक्श नहीं कर सकते। हमारे अंदर बेगर्जी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत, आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें और गुनाह, बीमारी और मौत तल्फ होने तक कम होते जाएंगे। इलाही असूल और साइंसी तरीक़ाकार के असूलों पर सख्ती से अमल करने से क्रिश्चियन साइंस के तालिब इल्मों ने कामयाबी को यकीनी बनाया है। सिर्फ इसी एजाज़ ने उन्हें वो मर्तबा फ़राहम किया जो वो कम्युनिटी में रखते हैं, यानी ऐसी साख जो उनकी कोशिशों से तजर्बाती तौर पर जायज़ करार पाती है। जो कोई भी इस बात का दावा करता है कि यहाँ एक असूल और ज़ाहिर होने वाले क्रिश्चियन साइंस के तरीक़ाकार से बढ़कर कुछ है, वो शाऊरी या लाशाऊरी तौर पर बहुत बड़ी गलती करता है और ख़ुद को क्रिश्चियन साइंस की शिफा के हकीकी फ़हम और इसके मुमकिन इज़हार से अलग कर लेता है। एक शख्स को सच्चाई की हौसला अफजाई से जुड़े रहना चाहिए, वगरना वो इलाही असूल को ज़ाहिर नहीं कर सकता। तो जब तक मादा अमल की बुनियाद है, बीमारी का इलाज मौसर तरीक़े से मबादुल तिब्बियाती अमल की बदौलत नहीं किया जा सकता। सच्चाई काम करती है और आपको अपने इज़हार के इलाही असूल को दोनों समझना भी और कायम रखना भी चाहिए। इस किस्म के नाकाबिले बयान एहसास के लिए किसको बुलंद खराज तहसीन जाएगा, फरीसी की मेहमानवाजी को या मगदलीनी की नदामत को? यीशु ने इस सवाल का जवाब खुदकार रास्तबाज की मलामत और ताइब की रिहाई का ऐलान करने से दिया। यहाँ एक संजीदा सवाल पेश किया गया है, ऐसा सवाल जो इस दौर की ज़रूरियात की बदौलत सामने आया है। जैसे शमौन ने मादी एतदाल पसंदी और ज़ाती अक़ीदत के वसीला निजात दहिंदा को पाया, क्या मसीही साइंसदानों को भी सच्चाई की वैसे ही तलाश करनी चाहिए? यीशु ने शमौन को उन मतलाशियों से मुतल्लिक़ तब बताया जब उसने रूहानी साफ दिली के बदले में उसे एक छोटा सा इनाम दिया जो मसीहा की तरफ से था। अगर मसीही साइंसदान शमौन की मानद हैं, तो ये उनसे मुतल्लिक़ भी कहा गया हो सकता है कि वो थोड़ा प्यार करते हैं। दूसरी जानब क्या वो अपनी असल मुआफ़ी अपने खस्ता दिलों की बदौलत जिनसे फ़िरौतनी और इंसानी हमदर्दी का इजहार होता है, सच्चाई या मसीह से अपनी वाक़फ़ियत को अयां करते हैं, जैसे इस औरत ने किया? अगर ऐसा है तो ये शायद उनके लिए कहा गया हो, जैसे यीशु ने बिन बुलाए मेहमान से मुतल्लिक़ कहा कि यकीनन वो ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा मुआफ़ किया गया है। अगर साइंसदान इलाही मोहब्बत के वसीला अपने मरीज़ तक पहुँचता है, तो शिफाइया काम एक ही आमद में मुकम्मल हो जाएगा और बीमारी अपने आबाई अदम में गायब हो जाएगी, जैसे कि सुबह के वक्त सूरज की रोशनी से पहले औस होती है। अगर साइंसदान में अपनी खुद की मुआफ़ी जीतने के लिए काफ़ी मसीही मोहब्बत और ऐसी तारीफ़ पाई जाती है जैसी मगदलीनी ने यीशु से पाई, तो साइंसी तौर पर अमल करने के लिए और हमदर्दी से मरीज़ों के साथ बर्ताव करने के लिए वो अच्छा मसीही है और नतीजा रूहानी इरादे के साथ मुताबिकत रखेगा। क्रिश्चियन साइंस इंसानी रज़ा को चुप करवाती, मोहब्बत और सच्चाई के साथ खौफ को खामोश करती और बीमार की शिफा में इलाही तवानाई की गैर महफूज हरकत को बयान करती है। खुद तलाश, हसद, जज्बा, तकब्बर, नफरत और बदला उस इलाही अक्ल की बदौलत निकाल दिए जाते हैं जो बीमार को शिफा देता है। ये खुदा इलाही असूल से हमारी नावाक़फ़ियत है जो ज़ाहिरी इख्तिलाफ को जन्म देती है और इससे मुतल्लिक़ बेहतर सोच हम आहंगी को बहाल करती है। अगर बीमारी सच है या सच्चाई का ख्याल है, तो आप बीमारी को नेस्त नहीं कर सकते और इसकी कोशिश करना भी मज़ीह का खेज़ होगा।
तो फिर बीमारी और गलती की दर्जा बंदी करें, जैसे हमारे मालिक ने किया जब उसने एक बीमार से मुतल्लिक कहा जिसको शैतान ने बांध रखा था, और इंसानी अकीदे पर अमल करते हुए सच्चाई की उस जिंदगी बख्श कुव्वत में गलती के लिए एक आला जहरमार तलाश करें, जो कुव्वत ऐसे कैदियों के लिए कैद का दरवाज़ा खोलती और जिस्मानी और इखलाकी तौर पर कैद से आज़ाद करती है। जब बीमारी या गुनाह का भरम आपको आजमाता है तो खुदा और उसके ख्याल के साथ मजबूती के साथ मुंसलिक रहें। उसके मिजाज के अलावा किसी चीज़ को आपके ख्याल में कायम होने की इजाज़त ना दें। किसी खौफ या शक को आपके इस वाज़ेह और मुतमिन भरोसे पर हावी ना होने दें कि पहचाने ज़िंदगी की हम आहंगी जैसे कि ज़िंदगी अज़ल से है, इस चीज़ के किसी भी दर्दनाक एहसास या यकीन को तबाह कर सकती है जो ज़िंदगी में है ही नहीं। जिस्मानी हिस्स की बजाय क्रिश्चियन साइंस को हस्ती से मुतल्लिक आपकी समझ की हिमायत करने दें, और ये समझ गलती को सच्चाई के साथ उखाड़ फेंकेगी, फ़ानियत को गैर फ़ानियत के साथ तब्दील करेगी और खामोशी की हम आहंगी के साथ मुखालफत करेगी। आसमान कोई जगह नहीं, अक़ल की इलाही हालत है जिसमें अक़ल के तमाम तर ज़हूर हम आहंग और फ़ानी होते हैं, क्योंकि वहाँ गुनाह नहीं है और इंसान वहाँ खुद की रास्तबाजी के साथ नहीं, खुदावंद की सोच की मलकियत में पाया जाता है, जैसा कि ये कलाम कहता है। इंसानी अकायद के कमज़ोर अहातों से आगे, अकायद की ढीली गिरफ्त से ऊपर, क्रिश्चियन अक़ल की शिफा एक ज़ाहिर शुदा और अमली साइंस पैदा करती है। हर दौर में ये आमराना रहती है, बतौर मसीह की सच्चाई, ज़िंदगी और मोहब्बत का मुकाशफा, जो हर इंसान के समझने और अमल करने के लिए मुस्तहकम रहता है। आइए साइंस को कबूल करें, अक़ली गवाही पर मुश्तमिल तमाम नज़रियात को तर्क करें, नाक़स नमूनों और पुरफ़रेब क़यास आराइयों से दस्तबरदार हों, और आइए हम एक खुदा, एक अक़ल और उस वाहिद कामिल को रखें जो फ़जीलत के अपने नमूनों को पैदा कर रहा है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए हर रोज़ ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।